So as I have explained you in the yesterday that price is directly related with supply, or supply is directly related with price. If the price will increase, supply will also increase. Okay, that after that we have read about the factors affecting supply. And now here we are going to start our next topic, that is the supply schedule. So supply schedule is a tabular presentation जो हम एक टेबल की फॉर्म में प्राइस और सप्लाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करते हैं, वो कहलाता है सप्लाई स्केड्यूल. जस्ट मार्क द डेफिनेशन. सप्लाई स्केड्यूल इज अ tabular statement showing various quantities of a commodity being supplied at various levels of prices, okay, during a given period of time. This is the supply schedule. जो एक tabular statement होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में, उसको बोला जाता है सप्लाई schedule. Now this is supply schedule is of two types. First is individual supply schedule, and second is market supply schedule. Market supply schedule. Individual supply schedule means when we see the price and the supply statement of one producer, it is known as individual supply schedule. For example, see this price and supply of only single producer is 1, 2, 3, 4, 5, and at this prices the supply is 5, 10, 15, 20, 25. This is known as individual supply schedule. Okay, so this is the first part of the supply schedule. The second form is market supply schedule. Means when we see the supply schedule of more than one producer, it is known as market supply schedule. You see this price, supply of one producer, supply of two producer, 1, 2, 3, 4, 5, and the same I have taken for this market supply. 5, 10, 15, 20, 25. Now, the other producer is demanding as 10, 20, 25, 30, 35. Randomly we are taking only there is a positive relationship. This is of the one producer, this is of the other producer. When more than one producer is taken, it can be more than the producer, can be 2, 4, 10, 20, 100, any can be, but that should be more than one. So it is known as a market supply schedule. Now we do the total of this market supply schedule. This is 15, 13, and this is 40, 50, and 60. Yeah, market supply schedule. Okay. Now the next one topic is supply curve. After the supply schedule, we are heading towards the supply curve. Supply curve. Mark the definition on page number 9.7. Supply curve refers to a graphical presentation of supply schedule. जो हमने भी supply schedule को draft out किया था, tabular statement बनाया था, जब उसको हम diagrammatically या graphically present कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं supply curve. Okay. Now this supply curve is again of two types. First is individual supply curve, and the other one is market supply curve. Okay. Now what is individual supply curve? The diagrammatic presentation of individual supply schedule. जो हमने ये individual supply schedule बनाया था, उसको जब हम diagrammatically present करते हैं, तो वो कहलाता है individual supply curve. Just see this. Price, supply. This is 1, 2, 3, 4, 5, and this is 5. Sorry, take it as okay, 5, 10, 15, 20, and 25. Let's see this. 1 पे कितना है ये? 5, 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20, 5 पर 25. ये सारे कर्व्स को जोड़ते हुए हमारा ये जो कर्व आता है, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. Now, after this market supply curve means the diagrammatic presentation of market supply schedule is known as market supply curve. Just see this, the diagrammatic presentation. Here I am drawing only because near the schedule it is easy to draw. This is price, this is supply, 1, 2, 3, 4, 5. And here I have to show all the variations from 5 to 60. So I will take the gap of 10. 10, 20, 30, 40, 50, and 60. Okay. Just see this. पहले हम बनाएंगे पहले प्रोड्यूसर की, फिर दूसरे प्रोड्यूसर का, फिर मार्केट का. Just see this. 1 पर कितना आएंगे? 5. यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 पर 5. At 2 this is 10.
at 3 this is 15, at 4 this is 20, 3 this is 15, at 4 this is 20 and at 5 this is 25. ये हो गया हमारा पहला प्रोड्यूसर. Now second producer, at 1 this is 10, at 2 this is 20, at 3 this is 25, at 4 it is 30, and at 5 it is 35. Okay, just see this. This is the second producer, and now the considering all the producers, maybe it will be more than 2, more than 5, more than 10 it can be. So here we have taken only 2. So this is at 1 कितना है ये? At 1 it is 15. यहाँ से start करेंगे इसको 15. At 2 this is 30. At 3 this is 40. At 4 it is 15. And at 5 it is 60. So ये आपका हो गया market का. Okay. So this is known as the market supply schedule. हाँ, तो इस तरीके से हमारा ये ready है. This is the first we have read supply schedule, which is of two types, individual and the market, and then we have read supply curve, which is again of two types, individual and the market. Okay. Now it is law of supply. Law of supply states the positive relationship between price and supply. Law of supply ये state करता है, ये नियम है सप्लाई का कि जब भी prices बढ़ते हैं तो सप्लाई क्या होती है, सप्लाई भी साथ में बढ़ जाती है. So law of supply states the positive relationship between price and supply, but this law states one phrase also. Just see this. It shows the positive relationship between price and supply is known as law of supply. But here this phrase added, keeping other factors constant. Now, what are these other factors? Other factors are the factors which you have read in the factors affecting supply apart from price. Just देखिए यहाँ पे just see over here on page number 9.3 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, the following determinants are termed as other factors or factors other than the price. यानी कि prices के अलावा बाकी सब चीजें constant रहती हैं, यानी कि price of the other goods, price of the factors of production, state of technology, government policy, goals, ये सभी चीजें constant रहेंगी, तभी हम कह सकते हैं कि price और supply में positive relationship होता है. ऐसा क्यों? Suppose करिए अगर मैं आपसे कहती हूँ prices बढ़ रहे हैं, supply बढ़नी चाहिए, लेकिन suppose करिए अगर उस समय पर inputs का price बढ़ जाता है तो क्या supply बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि producer का profit कम हो रहा है, वो क्यों प्रोड्यूस करेगा ना, जितना प्राइस बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली फैक्टर जो इनपुट्स है उसका प्राइस ज्यादा बढ़ जा रहा है, देन इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, दैट्स व्हाई ही विल नॉट प्रोड्यूस दैट कमोडिटी. Okay. So when all the other factors affecting price other than the first one, ये जो फर्स्ट वाला है इसको छोड़ करके बाकी जितने फैक्टर्स हैं अगर वो कांस्टेंट है, इन्हीं को हम नाम देते हैं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. वो कांस्टेंट है तभी हम कह सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. Okay. Now here constant का मीनिंग assumptions, कितनी ज्यादा फैक्टर्स है, यही चीज आपकी assumptions भी है. assumptions यानी कि इनको कांस्टेंट मान के ही हम कह सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. हाँ, अब देखिए यहाँ पर assumptions क्या है, देयर इज नो चेंज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट. जो अदर गुड्स है उनके प्राइसेस कैसे हैं, कांस्टेंट है. फिर नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, मान लीजिए अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस आ जाती है ना, तो वो सप्लाई ज्यादा, वो सप्लाई या आउट ऑफ टेक्नोलॉजी है, देन ही विल नॉट प्रोड्यूस मोर बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर. टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइसेस सेम है, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, गोल्स में कोई चेंज नहीं है, तभी हम कह सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको लॉ ऑफ सप्लाई को आपने कैसे शो करना है, आपने प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करना है और फिर उसके बाद में आपने इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देना है जो हमने पहले भी किया था. दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई. ओके, इतना आपने इसका पढ़ना है. अब आगे आइए, जितना बता रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना ही आपने करना है, बाकी सिलेबस में आपके नहीं है. नेक्स्ट वन टॉपिक इज मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. ओके,
Here now continue with the next topic, movement in the supply curve and shift in the supply curve. यानी कि अगर सप्लाई में चेंजेस होते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला आता है मूवमेंट और दूसरा आता है शिफ्ट. मूवमेंट इन सप्लाई कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं. It is given in the bracket form in your books. और shift in supply को हम change in supply भी बोलते हैं. इसका नाम दूसरा भी है ये. Now, what is movement in the supply curve? Movement in the supply curve means when supply changes only due to change in the price, keeping other factors constant, is known as movement in the supply curve. जब सप्लाई चेंज होती है सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस की वजह से, वो कहलाता है मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व. बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट है. बाकी सब फैक्टर्स कौन से हैं? प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड दिस other goods, goals, taxation policies, ये सब कुछ कांस्टेंट है. और जब सप्लाई में चेंज होता है सिर्फ प्राइसेस की वजह से, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट इन द सप्लाई. ये मूवमेंट दो तरीके का होता है. पहला होता है एक्सपेंशन और सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन. अब एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? सप्लाई का बढ़ना. सप्लाई का बढ़ेगी जब प्राइसेस बढ़ेंगे. ये प्राइस, ये सप्लाई 10 रुपए पर प्राइस है 100 रुपीज, 20 रुपए पर सप्लाई हो जाती है 200 रुपीज. ठीक है, तो ये हम इसको शो करेंगे 10 प्राइस, सप्लाई 10, 20, 100, 200. अभी हम 10 रुपए पर 100 सप्लाई, अभी हम यहाँ पर है. अब क्या हुआ? प्राइसेस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ गई है, तो हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन और एक्सटेंशन. सब कुछ बाकी कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइसेस में से सप्लाई चेंज हुई है. दूसरी बात आती है कॉन्ट्रैक्शन. मींस व्हेन सप्लाई चेंजेस ड्यू टू डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस. देखिए प्राइस, सप्लाई 10 रुपए में सप्लाई है 100, 5 रुपए पर हो जाती है 50. This is price, supply 5, 10, 50, 100. अब देखिए 10 पर 100 है. अभी हम इस जगह पर हैं. अब क्या हुआ? प्राइसेस घटे और सप्लाई भी कम हो गई है. अब हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई कर्व. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व. अब नेक्स्ट आते हैं हम शिफ्ट पर. शिफ्ट का मतलब होता है जबकि सप्लाई में चेंजेस होते हैं ओनली एंड ओनली ड्यू टू change in other factors and keeping prices constant. जब prices constant है लेकिन बाकी किसी भी फैक्टर की वजह से, maybe due to change in the factors of production, technology, imports, goals of the firm, taxation policy, ना, जब इनकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं, सप्लाई बढ़ती या घटती है, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. बट ओवर हियर प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट. Now this again shift is of two types. First is rightward shift, also known as the increase in supply. Okay, just see this price, supply. At 10, supply is 100, and at same price, supply is 200. Just see this 10, 20, 100, 200. देखिए 10 का सप्लाई 100, यहाँ पे है वो भी. अब क्या हुआ? सेम प्राइस पर सप्लाई बढ़ गई है. नाउ वी हैव शिफ्टेड ओवर हियर. दिस इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, आल्सो नोन एज द इंक्रीज इन सप्लाई. अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? कॉजेस क्या हो सकते हैं? प्राइसेस तो कांस्टेंट है, तो कारण क्या होंगे इसके? दिस इज सेम एज यू हैव रेड इन द थ्योरी ऑफ डिमांड. It may be decrease in the input, decrease in the price of inputs. Okay? अगर इनपुट का प्राइस गिर जाएगा तो भी राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है. एडवांस टेक्नोलॉजी, आपने टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करी है जिससे कि आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है. रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस में रिडक्शन हो गया है. और डिक्रीज इन द रिलेटेड गुड्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. जो संबंधित गुड्स, मान लीजिए राइस है, अभी आप व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस के प्राइसेस गिर जाते हैं, आप व्हीट को प्रोड्यूस करेंगे, आप उस पर शिफ्ट ही नहीं होंगे. तो ये है कॉजेस राइटवर्ड शिफ्ट के. नेक्स्ट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन सप्लाई. देखिए प्राइस, सप्लाई 10 रुपए पर प्राइस है 100, सेम 10 रुपए पर सप्लाई हो जाती है 50. 10, 50, 100. 10 रुपए पर है ये 100. ओके, 10 ही रुपए पर ये हो जाती है 50. इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ठीक है,
तो ये इसके कारण क्या होंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा, दैट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स। अगर इनपुट के प्राइसेस गिर जाएंगे तो भी सप्लाई गिर जाएगी सेम प्राइसेस पर। एट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन टैक्सेस और रिडक्शन इन सब्सिडीज और increase in the price of the related goods. तो ये कारण हो सकते हैं left worship. It is same as you have read in the chapter theory of demand. Okay. Now this was your concept for the theory of supply.